Hello. Hello. Am I audible first of all? Ma'am, just a minute. I will change my name. Actually, I'm logging in desktop. I'm Shivragat Patel. Actually, Okay, okay. It's okay. No problem. It's yeah, okay. just change my name. Okay, 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 okay. That's why so I thought there is a new student in the class. Hello, Sakshi. Hello, Shruti. Okay, okay, okay. No problem. No issue. Okay. So first of all, how are you, everyone? How is everything in your life? Good evening, Shruti. I can see your message. How are you, Shruti? You tell me. Sakshi, how's everything? Mm-hmm. Yes, you can open your, mic. There is no problem in that. Yes, very good. Good. So Shruti is good. Sakshi, what about you? Okay. So if you are comfortable, you can open your camera all the time. आप हमेशा अपना कैमरा ओपन रख सकते हैं. You will be alert. एंड ऐसा नहीं है कि कैमरा ओपन नहीं होता तो हम क्लास अच्छे से अटेंड नहीं करते, बट एक कैमरा जब ओपन रहता है उसका इसकी बात अलग हो जाती है. इट हैज डिफरेंट environment, ambience. You can understand that there is a teacher in front of me, right? You will be in you will be active, I should say. You can study without your camera also, without open your camera, but when you open your camera you will be more active, as it's my view. I have observed that. Okay. So yes, we are starting a new topic today, and before I start a new topic, I would like to give you some expressions that you should use when it comes to presentation, especially introduction की बात आती है तो you should use very simple. मैं ABC level को ही touch करूंगी. I will touch only ABC level. तो whenever you are starting your any topic, है ना, कभी भी आप कोई इतना topic start करते हैं, so हमेशा have start your presentation with greeting, right? हमेशा greeting से start करना चाहिए. Why? For example, you are starting your presentation and आपने बिल्कुल start कर दिया, लोगों को पता ही नहीं चला आपने कब start करा. So when you greet everybody, it shows that how mannered you are, how you give respect to people, right? Second thing is that when you greet everybody, all will be all ears. All ears, you understand? ऑल ईयर्स. जैसे मुझे बोलना है कान खड़े कर लो, हम हिंदी में बोलते हैं कान खड़े कर लो भाई, बिल्कुल ध्यान से सुनो. सो उसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल ईयर्स. उसको क्या बोलते हैं? ऑल ईयर्स मीन्स यू लिसन. व्हेन यू लिसन समथिंग केयरफुली, जब आप बहुत ध्यान से सुनते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑल ईयर्स. So when you greet everybody, or everybody is all ears, and they will they will focus on you, they will listen to you properly, right? So I am just telling you a phrase. एक phrase मैं आपको बता रही हूँ, कहीं भी आप वो use कर सकते हैं. जैसे एक तो मैं हमेशा use करती हूँ a hearty. a hearty, hearty मतलब तहे दिल से हम कहते हैं हिंदी में. a hearty morning. मॉर्निंग मतलब अगर आपका मॉर्निंग है तो मॉर्निंग में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो मॉर्निंग. अ हार्टी आफ्टरनून, अ हार्टी इवनिंग, है ना. हार्टी आप समझ गए. अ हार्टी मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून टू ऑल, है ना. एक मिनट, आफ्टरनून है ये, आफ्टरनून. ओके, माय स्पेलिंग इज रॉन्ग. इट इज आफ्टरनून, है ना. आफ्टरनून टू ऑल, या आप बोल सकते हैं एवरीवन. एवरीवन भी बोल सकते हो, एवरीबडी भी बोल सकते हो, एवरीबडी, राइट, है ना. सो अ हार्टी मॉर्निंग, इवनिंग, एवरीबडी, और ऑल प्रेजेंट हियर. मैं तो हमेशा यूज करती हूँ, राइट. थोड़ा अच्छा भी लगता है, इफेक्टिव लगता है. व्हेन यू स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन विद अ ब्यूटीफुल फ्रेज, इट shows that how well you have prepared your presentation. इसके अलावा आप बोल सकते हैं a lovely, or you can say energetic, है ना. energetic morning, है ना, अच्छा लगता है सुनने में. a lovely, energetic, yeah, an energetic morning या evening. all my friends, all my teacher, है ना, all my classmates, or you can say class. ठीक है, right? Then
आफ्टर ग्रीटिंग पहला हमारा क्या होता है, पहला पार्ट क्या होता है प्रेजेंटेशन का, दैट इज ग्रीटिंग. सो जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं हमेशा ध्यान रखिए, आप हमेशा whenever you are giving presentation you should have energy in you. मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी टोन मैच करना चाहिए. जैसे मैंने बोला गुड मॉर्निंग एवरीवन, मतलब मैं गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ बट चेहरा मेरा मैच नहीं कर रहा, मेरी बॉडी लैंग्वेज से मेरी आवाज मैच नहीं कर रही. हेलो ऐसे बोलो ना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन. तो एक अच्छा सा प्लेजेंट स्माइल. सो व्हेन यू आर गिविंग प्रेजेंटेशन हैव अ प्लेजेंट स्माइल. एक छोटा सा एक स्माइल होना चाहिए फेस पर, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना. और हमेशा ऐसा नहीं कि बहुत तेज हंसना है, गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून, ज्यादा नहीं, सिंपल प्लेजेंट स्माइल आपके फेस पे होना चाहिए, है ना. आपकी आवाज से लगना चाहिए यू आर प्रिटी एक्साइटेड टू गिव योर प्रेजेंटेशन, है ना. उसके बाद दूसरा टॉपिक, आपको टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है. क्या इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोड्यूस योर टॉपिक. जो भी टॉपिक पे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो उसको इंट्रोड्यूस करोगे. कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, जैसे मान लीजिए सिंपल, माय टॉपिक ऑफ द डे इज, सिंपल आप बोलोगे माय टॉपिक ऑफ द डे इज डैश डैश डैश. से मान लीजिए माय टॉपिक ऑफ द डे, आई एम सॉरी, द डे इज, मान लीजिए है कोविड. आपको कोविड पर बोलना है. कोविड मैंने आपको टॉपिक दे दिया, उस पर आपको प्रेजेंटेशन देना है. माय टॉपिक ऑफ द डे इज कोविड. और आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू गिव प्रेजेंटेशन ऑन कोविड. मान लीजिए आपको कोविड पर प्रेजेंटेशन देना है, आई एम गोइंग टू गिव प्रेजेंटेशन ऑन. तो ऑन के बाद जो भी टॉपिक है, ऑन के बाद आपको क्या करना है, टॉपिक बताना है. तो जब आप ग्रीट करते हैं, ग्रीट करने के बाद आपको टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है कि आप किस टॉपिक पर काम प्रेजेंटेशन दे रहे हो. मान लीजिए आप माय इंट्रोडक्शन पे, कल आपने छोटा सा स्वीट एंड शॉर्ट प्रेजेंटेशन दिया था, आपका कल का टॉपिक था माई सेल्फ, मतलब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे. सो आप ये लिख सकते हो, गाइज गुड इवनिंग वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, आई एम Sakshi, I'm Shruti, I'm Shiva, and I'm going to give presentation on my topic of the day is, ऐसे बोल सकते हो. So I'm going to give presentation on self introduction. टॉपिक हमारा क्या था कल का, self introduction. ये हो गया, है ना. My topic of the day is self introduction. I'm going to give presentation on self introduction. मान लीजिए आप ग्लोबल वार्मिंग पर कुछ कहना चाहते हैं, क्लाइमेट चेंज एक टॉपिक है, इस पे कुछ कहना चाहते हैं. सो माय टॉपिक ऑफ द डे इज क्लाइमेट चेंज, है ना. और आप क्या बोल सकते हो, आई एम गोइंग टू थ्रो लाइट ऑन डाउरी. मान लीजिए डाउरी एक टॉपिक है ना, आपको पता है डाउरी मतलब होता है दहेज प्रथा, राइट. सो डाउरी आपका टॉपिक. तो आई एम गोइंग टू थ्रो लाइट ऑन डाउरी, आई एम गोइंग टू थ्रो लाइट ऑन क्लाइमेट चेंज, आई एम गोइंग टू थ्रो लाइट ऑन टॉपिक का नाम है. यहाँ तक क्लियर है गाइस, से यस और नो. ये मतलब मैं आपको हमेशा के लिए बता रही हूँ कि जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो इन पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है. am I clear guys? आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही है? निधि, साक्षी, श्रुति, हसमत. Yes, ma'am. ओके, थैंक यू सो मच. Yes, ma'am. उसके बाद जब आप, पहला क्या हो गया, पहला ग्रीटिंग हो गया. मैं इसको, है ना, ये इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ. पहला हमारा ग्रीटिंग, मतलब मैं एक टॉपिक को, एक प्रेजेंटेशन को डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ रही हूँ ताकि आपके लिए इजी हो. ग्रीटिंग हो गया. ग्रीटिंग करने के बाद हमने क्या किया, हमने अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया. जैसे मान लीजिए माय सेल्फ इंट्रोडक्शन, ये एक टॉपिक हो गया, है ना. इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ दिए तो आप यूज कर सकते हैं हमेशा. उसके बाद आपको टॉपिक के बारे में स्टार्ट करना है. स्टार्ट दी टॉपिक, जो भी टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे, जो भी आपको टॉपिक के बारे में बोलना है ना. तो जैसे मान लीजिए आपका टॉपिक था सेल्फ इंट्रोडक्शन,
है ना, ये सेल्फ इंट्रोडक्शन आपका टॉपिक था। तो कल आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया, काफी बच्चों ने दिया, यू ऑल आर कॉन्फिडेंट, हाफ ऑफ वेरी फ्यू स्टूडेंट्स डिड ग्रामेटिकल एरर, कम ही थे जिन्होंने ग्रामेटिकल एरर किया था, हालांकि है ना, बाकी सबका प्रेजेंटेशन अच्छा था। अब चलिए मैं कुछ पॉइंट्स की बात करती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए, यू कैन हैव योर कॉपी एंड यू कैन नोट डाउन दीज पॉइंट्स, ठीक है। पहला पॉइंट ये है ना, जब आप कहते हैं मैं मैं पुणे से हूँ, मैं चंडीगढ़ से हूँ, मैं भोपाल से हूँ, तो देयर आर मेनी फ्रेज। आप पहला फ्रेज है आई बिलोंग टू, आप क्या बोल सकते हो, आई बिलोंग टू, जैसे आई बिलोंग टू रीवा, आई बिलोंग टू भोपाल। या आप बोल सकते हो आई एम फ्रॉम पुणे, आई एम फ्रॉम बीना, आई एम फ्रॉम कर्नाटका, है ना, ठीक है। या आप बोल सकते हो आई हेल फ्रॉम, क्या बोल सकते हो, आई हेल फ्रॉम। कम ऑन, फर्स्ट पॉइंट क्या है, अब आप लोग को बोलना है मेरे साथ में। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने आपको, आई बिलोंग टू। फर्स्ट पॉइंट क्या है, आई बिलोंग टू, राइट। सेकेंड पॉइंट है आई एम फ्रॉम, ये सभी को पता होता है। और थर्ड वाला है आई हेल फ्रॉम, क्या बोलते हैं श्रुति, आई हेल फ्रॉम, I hail from. यस, आई हेल फ्रॉम भोपाल, आई हेल फ्रॉम भोपाल। विच, है ना, वेयर आर यू हेल फ्रॉम, जैसे मुझे पूछना है वेयर आर यू हेल फ्रॉम, है ना, ऐसे पूछ सकते हैं। और विच प्लेस डू यू बिलोंग टू, आप कहाँ से हो, जैसे मुझे पूछना तो मैं क्या बोलूंगी, विच प्लेस डू यू बिलोंग टू। वेयर आर यू फ्रॉम बोल सकते हैं, बट अगर आप किसी से पूछना तो आप क्या बोल सकते हैं, विच प्लेस डू यू बिलोंग टू, आप कहाँ से हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने जब अपने पढ़ाई की स्टडी की बात करी थी, है ना, सम आर इन स्टडी, सम आर डूइंग जॉब, है ना, तो मान लीजिए जैसे साक्षी क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, व्हाट आर यू डूइंग, हेलो, I'm learning. you are learning, actually Sakshi, you are learning right now, I mean apart from this, are you studying something, are you in school, college, right? Yes, ma'am. है ना, तो साक्षी यू आर इन, जैसे साक्षी से पूछे, साक्षी यू आर इन कॉलेज, है ना, यू आर डूइंग बीए ना, एम आई राइट, Yes, ma'am. बीए किस सब्जेक्ट से कर रहे हो आप बीए साक्षी, Arts. आर्ट्स, ठीक है। तो मान लीजिए साक्षी को बोलना है मैं आर्ट्स से बीए कर रही हूँ, तो बहुत से बच्चे बोलेंगे आई एम डूइंग, बच्चे ऐसे बोलते हैं आई एम डूइंग बीए विथ फ्रॉम आर्ट्स, बहुत से बोलते हैं आर्ट फ्रॉम आर्ट्स लिख देते हैं, बट फ्रॉम आर्ट्स नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाता है। आपको क्या बोलना है, देखो श्रुति आप देखो क्या होगा, विथ आर्ट्स, विथ आर्ट्स। अब मान लीजिए मुझे बोलना है, आपको फ्रॉम यूज नहीं करना है, आपको यहाँ क्या यूज करना है, यू हैव टू यूज विथ, है ना। विथ का मतलब होता है साथ, पर नहीं, विथ का मतलब फ्रॉम के सेंस में भी यूज हो सकता है, ठीक है। अब जैसे मुझे बोलना है कि शिवा बायोटेक्नोलॉजी से बीएससी कर रहा है, तो कैसे बोलेंगे, कम ऑन गाइस, ओपन योर माइक, सभी ओपन रखिए माइक, सबको एक्टिव रहना है, कैमरा भी ओपन रखिए, माइक भी ओपन रखिए। हाँ जी, प्लीज रिपीट वंस मोर। मैं कह रही हूँ कि मुझे बोलना है जैसे शिवा बीएससी कर रहा है बायोटेक से बीएससी कर रहा है, आई स्टडीइंग इन बीएससी बायोटेक डिपार्टमेंट। आई एम स्टडिंग, या तो ये बोल सकते हो आई एम स्टडिंग, या बोल सकते हो आई एम डूइंग बीएससी विथ यूज करना है, विथ बायोटेक, ऐसे सब्जेक्ट या स्ट्रीम हमेशा विथ के साथ आएगा। जैसे श्रुति मुझे बोलना है कि मैं एमएससी कर रही हूँ, मैं नूतन कॉलेज से एमएससी कर रही हूँ केमिस्ट्री से, मैं केमिस्ट्री से एमएससी कर रही हूँ, तो मैं कैसे बोलूंगी, आई एम डूइंग या स्टडिंग Yes, ma'am. एमएससी विथ केमिस्ट्री, क्या बोलूंगी, with chemistry, I'm doing yes, I'm doing MSc with MSc biology. chemistry, या आप किससे कर रहे हैं, राइट, तो
chemistry, with maths, with zoology. You are getting my point? आपको जब भी stream की बात आती है, stream के साथ हमेशा with use करना है बेटा, from use नहीं करना है ना? ये grammatical point of view से मैं आपको बता रही हूँ. बहुत से बच्चे from use करते हैं, but subject या stream add करते हैं तो हमेशा from use नहीं करते, आपको with use करना है. With zoology, with maths, with geography. I'm doing BA with, with I'm doing MA with public administration, with painting, with dance. तो with use होता है stream या subject के साथ में. क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात मान लीजिए किसी कोई आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, व्हाट्स योर एजुकेशन. तो मान लीजिए मैं शिवा सर से पूछ रही हूँ, है ना, बिकॉज ही इज डन विथ हिज एजुकेशन, ही इज इन जॉब. तो सर, शिवा सर, यू टेल मी व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन. Yeah, ma'am. I'm doing BCom. I did BCom. हाँ, I did, very nice. मैं वही बोलने वाली थी. I did BCom, है ना. Doing तो मतलब अगर आप कर रहे हो, है ना. So I did BCom. It's okay, है ना. So I did BCom, है ना. I did BCom, very nice. You did BCom, very good. Bachelor of Commerce, very nice, very nice. You can mention your year also if you want to, है ना. ये ठीक है. Now मान लीजिए मैंने yes sir. Can you add ना 2015? Yeah, you can add if somebody is asking. Yes. अच्छा, मान लीजिए मुझे बोलना है मेरी पढ़ाई हो गई है, मतलब मेरी पढ़ाई वगैरह तो मेरी कंप्लीट हो गई है, तो कैसे बोलेंगे? श्रुति, साक्षी, बताओ. मेरी पढ़ाई हो गई है मैडम. हसमत, निधि, अगर मुझे बोलना है मेरी पढ़ाई तो हो गई है, I am done with studies. क्या बोलेंगे? I am done with my studies. I'm done with my studies. मेरी पढ़ाई हो गई है. I'm done with my studies. तो एक एक्सप्रेशन सीखते हैं. एक्सप्रेशन ऑफ द डे इज I am done with. आज का एक्सप्रेशन क्या है? I am done with. I am done with. I am done with मतलब मेरा हो गया. ये कहीं भी यूज कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, गाइस हैव यू टेकन योर डिनर, क्या आप लोगों ने अपना डिनर वगैरह ले लिया है? तो आप बोलोगे यस मैम, मेरा तो हो गया, मेरा खाना हो गया. कोई भी एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, आई एम डन. तो आप पता है यहाँ पर क्या बोल सकते हो? आई एम डन विथ डिनर. क्या बोल सकते हो श्रुति, साक्षी, हसमत? आई एम डन विथ डिनर. ठीक है. जैसे मुझे बोलना है मतलब मैंने पूजा वगैरह कर ली है, सुबह सुबह उठ के पूजा करते हैं, है ना, यू वर्शिप, है ना. तो आई एम डन विथ वर्शिप. ठीक है. ठीक है, मेरा घर का सारा काम हो गया है, मैंने अपने घर का काम कर लिया है, सब फिनिश हो गया है. तो क्या बोलेंगे? आई एम डन विथ डोमेस्टिक चोर. घर के काम को क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक चोर. इट्स नॉट चोर सिपाही वाला चोर, चोर. द प्रोनाउंसिएशन इज चोर. आई एम डन विथ डोमेस्टिक चोर, है ना. अगर चलिए मैं सबसे पूछती हूँ, सब मुझे बताएंगे. श्रुति, जैसे बोलना है मेरा असाइनमेंट हो गया है, तो कैसे बोलोगे? I'm done my assignment. I'm done with assignment. With use करना है. Done with assignment. हाँ, expression है done with. I'm done with my assignment. Okay, very nice. साक्षी, आप बताओ, आपको बोलना है मैंने ABC बैच कर लिया है, मेरा ABC बैच हो गया है. मान लीजिए आपका ABC बैच फिनिश हो गया है, तो आप कैसे बोलोगे साक्षी? I'm done with ABC my बैच. ABC course. batch. I'm done with my ABC course. Very nice, very good, very nice. Okay, so that's it. Okay, so now I'm gonna start a new topic today. Before I start new topic, let's learn some vocabularies. कुछ नए words पढ़ते हैं. क्या होता है जब हम कॉलेज से आते हैं या हम जॉब से आते हैं तो बहुत ज्यादा भूख लगती है. ये बात तो सही है ना. आप जब कभी कॉलेज से आते हो या आप जॉब से आते हो, सबसे ज्यादा भूख, मुझे तो बहुत भूख लगती है. मैं बाहर से आती हूँ काम करके, तो मुझे लगता है यार कुछ खाने को मिल जाए, बहुत तेज भूख लग रही है. आपके पेट में चूहे कूद रहे होते हैं, है ना. ऐसा होता है ना, मैडम मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, बहुत भूख लग रही है, राइट. तो कैसे बोलोगे इंग्लिश में? फर्स्ट नंबर एक्सप्रेशन, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा भूख लग रही है.
इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं? I'm so hungry. I'm so hungry. Very Yeah, good. I'm starving. So very nice. I'm so hungry सबसे सिंपल है, ठीक है। एक और आपने बोला श्रुति ने, I'm starving. Yes, very nice श्रुति, I'm starving. आप बोल सकते हो I'm famished. बहुत ज्यादा भूख लगती है ना, वो जो एक सेंटेंस होता है ना, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, बहुत तेज भूख लग रही है, राइट? आप बोल सकते हो उसके लिए I'm famished. क्या बोलेंगे? I'm famished means मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मुझे बहुत I'm very 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 much hungry and famished. तो famished का मतलब होता है पेट में चूहे दौड़ना, famished. न्यू वर्ड ऑफ द डे, आप लोग नोट करते जाइए, समझते जाइए, ठीक है। चलिए, अभी गर्मी बहुत चल रही है ना, इट्स सो हॉट नाउअडेज, एक्सट्रीमली हॉट नाउअडेज, राइट? ह्यूमिड आल्सो हियर, तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होगी, है ना? तो गर्मी में हम पानी ज्यादा पीते हैं, बहुत प्यास लग रही है। मान लीजिए आप चलकर आए और आपको बहुत तेज प्यास लग रही है, यार मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, तो प्यास लगने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? I'm thirsty. वेरी नाइस, आई एम thirsty. thirsty thirsty चलिए, प्यास लग रही तो thirsty बोल दिया, श्रुति ने आंसर बता दिया। बट पानी पी लिया आपने, अब प्यास बुझ गई, मेरी प्यास बुझ गई, बस अब मत दीजिए, पानी पी लिया मैंने, मेरी प्यास बुझ गई, तो प्यास बुझने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनी आइडिया? कोई और बताएगा? श्रुति तो आंसर दे ही रही है, श्रुति के अलावा कोई बता सकता है कि हेलो कौशिक सर, व्हाट शुड आई से? है ना, देयर इज वन स्टूडेंट इन द क्लास, ही हैज एंटर्ड, वेलकम टू डॉक्टर इंग्लिश ऐप, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, है ना? प्यास बुझने को बोलते हैं क्वेंच, QUENCH। क्वेंच मतलब होता है आपको बहुत प्यास लग रही थी और आपने पानी पी लिया और आपकी प्यास बुझ गई, राइट? क्वेंच योर थर्स्ट, क्वेंच, QUENCH। तो क्वेंच मतलब क्या होता है? प्यास बुझ जाना, पानी पी लिया, प्यास बुझ गई। अच्छा, मान लीजिए मैंने आपके सामने बहुत सारी डिशेस रख दी हैं, समोसा, कचौड़ी, जलेबी, पकौड़ा एंड वगैरह वगैरह ना, और आप बोलोगे मैडम प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ी हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, खाने की बात मत कीजिए अभी वैसे ही मैंने कुछ नहीं खाया है ना, मेरे मुंह में पानी आ जाएगा नहीं तो, है ना? तो खाने की कोई बात करे और आपके मुंह में पानी आ जाए, आपकी फेवरेट डिश, जैसे मान लीजिए मैंने साक्षी से पूछा, साक्षी विच इज योर फेवरेट डिश, व्हाट इज योर फेवरेट डिश? My favorite. कोई Pizza. भी? हाँ जी, Pizza. पिज्जा, पिज्जा इज योर फेवरेट, है ना? पिज्जा सभी का फेवरेट है, और मैं पिज्जा खा रही हूँ, आपको लगेगा यार मैडम खा रही है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है? You can say I have watery mouth. क्या कहेंगे? I have watery mouth. या बोल सकते हैं my mouth is watering, है ना? कुछ अच्छी चीज देखकर आपकी फेवरेट चीज हो गई, कोई आपको चिढ़ा रहा है, somebody is teasing you, showing your favorite dish, तो my mouth is watering। क्या हमारे भोपाल में, मतलब वैसे तो बहुत ज्यादा इतने सारे फूड जॉइंट्स नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है जैसे इंदौर वगैरह में ज्यादा कल्चर है, बट हमारे यहाँ सागर गिरे बहुत फेमस है, तो जब भी हम लोग पास्ता की बात आती है या सैंडविच की बात आती है तो ना मुंह में पानी आ जाता है, क्यों श्रुति? राइट चलो ओके, नाउ वन मोर सेंटेंस, एक और वर्ड पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे, मतलब क्लास तो स्टार्ट हो गई है, थोड़ा सा ग्रामर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको मुझे बताना है, बारिश का मौसम कितने लोगों को पसंद है? सभी को पसंद होगा, है ना? तो बारिश, आपको ये बताना है, आपको ये बताना है, वेरी नाइस, आपको ये बताना है जो हल्की हल्की बारिश होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल बूंदाबांदी, हिंदी में बोलते हैं बूंदाबांदी, बिल्कुल हल्की हल्की, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आप मुझे बताओगे थोड़ी देर बाद। और बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैसे तो हम बोलते हैं लाइट रेन, लाइट रेन मतलब हल्की बारिश, और हैवी रेन मतलब भारी बारिश, नहीं, बट एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, ये आप मुझे थोड़ी देर बाद बताओगे, मैं भी आपको बताऊंगी, बट आपको पहले सोचना है, फिर आपको मुझे बताना है, ठीक है? चलिए,
तो आज की हम ग्रामर की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया मैं आपको बता देती हूँ, जो अब जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। मैंने आज आपको ये बताया है कि कभी भी आप टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो कैसे आप टॉपिक स्टार्ट करोगे। हाउ विल यू स्टार्ट एनी टॉपिक? यू विल स्टार्ट विद द ग्रीटिंग, यू विल देन इंट्रोड्यूस योर टॉपिक। आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे, जो भी टॉपिक है टॉपिक स्टार्ट करोगे। फिर कुछ मैंने वर्ड्स, कल आप प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो मुझे लगा मुझे कुछ शेयर करना चाहिए, तो मैंने यहाँ आपको बताया आई एम स्टडिंग विथ, आई एम डूइंग बीए विथ। तो सब्जेक्ट के साथ या स्ट्रीम के साथ हम विथ लगाते हैं। और भी बहुत से हम पढ़ने वाले हैं। आई एम डन विथ एक एक्सप्रेशन होता है, आई एम डन विथ। कोई भी आपका काम हो जाए तो इसके लिए आप एक्सप्रेशन यूज करिए, आई एम डन विथ। आई एम डन विथ माई डिनर, आई एम डन विथ माई लंच, आई एम डन विथ माई होमवर्क, आई एम डन विथ माई असाइनमेंट, आई एम डन विथ जो भी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई है, कहीं भी यूज कर सकते हो आप। देन वोकैबुलरी हमने पढ़ी, बहुत ज्यादा भूख लगना, पेट में चूहे दौड़ना, राइट, उसको इंग्लिश में बोलते हैं आई एम स्टार्विंग या आई एम फैमिश्ड। प्यास लगने को बोलते हैं आई एम थर्स्टी। प्यास बुझाने को बोलते हैं क्वेंच। और मुंह में पानी आ रहा है, कोई आपकी फेवरेट डिश के बारे में बात कर रहा है, आई हैव वाटरी माउथ या माई माउथ इज वाटरिंग, है ना। तो जल्दी से मुझे बताइए कि लाइट रेन को क्या बोलते हैं? एनीबडी? ड्रिजल। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रिजल, DRIZZLE। हल्की हल्की बारिश, बूंदा बांदी जो होती है उसको ड्रिजल बोलते हैं, DRIZZLE, ड्रिजल। इसको यूज कैसे करोगे? जैसे मुझे बोलना है हल्की हल्की बारिश हो रही है बाहर, तो आप बोलोगे इट्स ड्रिजलिंग। क्या बोलोगे? इट्स ड्रिजलिंग। यहाँ बहुत हल्की बारिश हो रही है, इट्स ड्रिजलिंग। पर बहुत बहुत भारी बारिश हो रही है, बहुत भारी बारिश हो रही है, उसके लिए आप बोलोगे इट्स डाउन पोरिंग। डाउन पोरिंग, डाउन पोरिंग मतलब होता है बहुत भारी बारिश होना, है ना। डाउन पोरिंग, इट्स डाउन पोरिंग भारी बारिश, ड्रिजलिंग हल्की हल्की बारिश, है ना। चलिए, नाउ लेट मी जस्ट क्लोज दिस और आज का हम ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट मी स्टार्ट द ग्रामर टॉपिक। मैंने अभी आपको एक पीडीएफ मटेरियल शेयर किया था। आज गाइज, आज की जो क्लास होने वाली है, मतलब जो ग्रामर का टॉपिक है उसका पीडीएफ मैंने आपको शेयर कर दिया है। जो नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि आप अनाउंसमेंट सेक्शन पर क्लिक करके मटेरियल इकट्ठा कर सकते हैं, मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। मैं आपको दिखा भी रही हूँ, आई एम ओपनिंग ऑल्सो मटेरियल। तो कल का मटेरियल आई होप कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। और कल मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, आपको याद है? डू यू रिमेम्बर? हमने थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस किया था कल, और मैंने कहा था आपको वर्ड्स के मीनिंग बताने हैं। तो आप लोगों ने होमवर्क करके आए हैं आप लोग अपना? आर यू डन? आर यू डन विथ योर होमवर्क और नॉट? यस और नो? कोई बात नहीं, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। तो एक काम करते हैं, उसको हम बाद में देखते हैं, उसको जरूर देखेंगे, पर पहले हम क्या करते हैं, अपना मटेरियल आज का स्टार्ट करते हैं। मतलब ग्रामर का एक टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है। लेट मी जस्ट ओपन दिस। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes, ma'am. ओके ओके, चलो। तो चलिए, और कल के वीडियोस भी मैंने आपको अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। 28 मार्च का वीडियो भी अपलोड हो चुका है, 29 मार्च का भी हो गया है, और आज का वीडियो भी आपको कल तक मिल जाएगा, है ना। डोंट वरी अबाउट दैट। सो जो भी नए स्टूडेंट है, जैसे मोहंती आई कैन सी, आई थिंक ही इज आल्सो फ्रॉम उड़ीसा, उड़ीसा से ही होंगे जहां तक मुझे आपके सरनेम से पता चल रहा है। यू आर आल्सो फ्रॉम उड़ीसा, राइट? यस। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप बताइए अपने बारे में कुछ थोड़ा सा, प्लीज। Yes, ma'am. My name is Kaushika Samadhi. I am from Odisha, and I am class 7 student. You are in class 7? From Kendriya Vidyalaya. Very nice. Which Kendriya Vidyalaya? KV2, KV1? Ma'am, KV1. Okay. Actually, my sister, used to. Okay. मेरी बहन है ना, मेरी सिस्टर पहले वहाँ उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, एक्चुअली भुवनेश्वर में केवी वहाँ पढ़ती थी, हम लोग वहाँ रहे ना, तो मेरी सिस्टर भी वहाँ पढ़ती थी, इसलिए मैंने अच्छा 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 अच्छा। चलिए, तो वेलकम यू ऑन डॉक्टर इंग्लिश ऐप, है ना। स्वागत है आपका। आप ना पुरानी वीडियोस को जरूर देखिए, जो पुरानी 2 क्लास की वीडियोस रह गए। चलिए, तो गाइज आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। टू बी वर्ब, आज का टॉपिक क्या है गाइज? टुडेज टॉपिक इज टू बी वर्ब, है ना। टू बी वर्ब क्या होता है?
चलिए मैं आपको बताती हूँ टू बी वर्ब क्या होता है। देखिए आपको स्क्रीन नजर आ रहा है, इज माई स्क्रीन विजिबल नाउ? चलिए चलो, तो जहां भी आपको इज एम आर नजर आता है, जैसे कहीं भी आपको किसी भी सेंटेंस में आपको इज दिखे, एम दिखे, आर दिखे, है ना, क्या दिखे, इज दिखे, एम दिखे, आर दिखे, तो वो कौन से वर्ब होते हैं? टू बी वर्ब। अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने अपने बारे में कुछ बता रही हूँ, मैं अपने बारे में 5 पॉइंट्स बता रही हूँ। आई एम शालिनी, आई एम फ्रॉम भोपाल, आई एम अ टीचर, आई एम पोलाइट, आई एम इन द क्लास, यू आर माई स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने 5 सेंटेंस बताए, फिर से बता रही हूँ। आई एम शालिनी, आई एम फ्रॉम भोपाल, सिटी ऑफ लेक्स, I'm a teacher by profession, I'm polite, I'm in my class, I'm in my room right now, and you all are my students. तो हर सेंटेंस में मैं बार बार क्या यूज कर रही हूँ? am a teacher, am polite, am। तो जो am होता है उस am का मतलब होता है बनना या होना। उसका am का मतलब क्या होता है गाइस? बनना या होना, राइट? तो जब भी किसी सेंटेंस में आइडेंटिफिकेशन की बात होती है, मतलब आपकी पहचान, आपका क्या नाम है, आपकी जॉब क्या है, यू आर एन एम्प्लॉई, यू आर अ प्राइवेट एम्प्लॉय और यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। योर क्वालिटीज, जब आपकी क्वालिटीज की बात आती है, यू आर हार्ड वर्किंग, यू आर लेबोरियस, है ना, यू आर डिलीजेंट, श्रुति ने कल बताया था, है ना। वेयर आर यू, जब आपकी लोकेशन की बात आती है, आई एम इन भोपाल, आई एम इन वेस्ट बंगाल, आई एम इन क्लासरूम, आई एम इन कॉलेज, आई एम इन द बस। पोजीशन की बात आती है, लोकेलिटी की बात आती है, जब आपकी रिलेशन की बात आती है, यू आर माई स्टूडेंट्स, हमारे बीच स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन है, यू आर माई स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर, शी इज माई सिस्टर, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई फादर, शी इज माई मदर। तो जब रिलेशन की बात आती है, उस तरह के वर्ब को हम कहते हैं टू बी वर्ब। क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड टू बी वर्ब। टू बी वर्ब का मतलब होता है बनना या होना, बनना या होना। जैसे just give me a minute, let me just write down for you, है ना। आप लोगों को जो बाकी लोगों को हिंदी इंग्लिश में, मतलब हिंदी में तो दिक्कत नहीं हो रही ना, बाकी स्टूडेंट्स को, दे आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, तो अगर कुछ हिंदी के वर्ड्स भी समझ में नहीं आए तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, है ना। तो टू बी वर्ब आज का टॉपिक है, जिसका मतलब क्या होता है? बनना या होना, बनना या होना इसका मतलब होता है, जिसका मतलब इज एम आर। इज एम आर क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? टू बी वर्ब। अच्छा, एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है। इज और एम का पास्ट होता है वॉज। क्या होता है? इज और एम का पास्ट क्या होता है गाइस? वॉज। और आर का पास्ट होता है वर। इसको क्या कहा जाता है? वर, वर, राइट, है ना। ठीक है, इसको वर कहेंगे, वेयर नहीं कहेंगे। बहुत से बच्चे इसको वेयर बोलते हैं, ध्यान दीजिए। थोड़ा सा हम मिस्टेक कभी भी कर देते हैं। वेयर अलग होता है और वर अलग होता है। वेयर मतलब होता है कहाँ, और वर मतलब होता है था, थी, थे। हिंदी में बोल रही हूँ, था, थी, थे। जैसे मैंने बोला वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, तो वो वेयर हो गया। वेयर मतलब कहाँ, बट मैं क्या पढ़ा रही हूँ? वर। वर मतलब था, थी, थे। ये जो वर होता है वो आर का पास्ट होता है। किसका पास्ट होता है? ये जो आर है ना, आर का पास्ट क्या होता है? वर होता है, वर होता है। और इज और एम का पास्ट क्या होता है? वॉज होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस की बात की जाए तो इज एम आर। जैसे मैंने बोला आई एम स्मार्ट, या आई एम बिल्कुल मतलब मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल 0 लेवल की ग्रामर है ये, मतलब बिल्कुल मैं बेसिक से पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल 0 लेवल से। तो छोटी छोटी चीजों से ही हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर की क्लास। सबसे सिंपल टॉपिक है ये, आई एम स्मार्ट। तो यहाँ पर जो मैंने एम यूज करा है वो कौन सा वर्ब है गाइस? फिर से मैं बोल रही हूँ, ये टू बी वर्ब है।
फिर अब हम इसका पास्ट बनाएंगे। जब इसका पास्ट टेंस बन जाता है तो ये क्या हो जाता है, was। तो आई एम स्मार्ट का पास्ट हो जाएगा आई was स्मार्ट। आई एम स्मार्ट, आई was स्मार्ट। मैं स्मार्ट हूं, मैं स्मार्ट था या मैं स्मार्ट थी। फिर फ्यूचर टेंस क्या होगा आप बता सकते हैं? इज़ेमार का फ्यूचर टेंस क्या होगा? will, shall. Will be and shall be. Yes, will be and shall be. Very good. This will be your future tense. तो सेंटेंस क्या बनाएगा? I will be. I will be हो सकता है, I shall be हो सकता है, बट हम क्या यूज करेंगे ज्यादा? हम ज्यादा यूज करते हैं will। shall हम कम यूज करते हैं। मैं आपको रीजन बताऊंगी shall हम कम क्यों यूज करते हैं, पता है? क्योंकि स्पोकन में हम यूज करते हैं will, और जो shall होता है वो रिटन इंग्लिश में ज्यादा यूज होता है। तो हमेशा याद रखिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैडम मैं will बोलूं कि shall बोलूं? नहीं, जब आप स्पीकिंग कर रहे हो इंग्लिश में, हमेशा हमेशा will ही यूज करिए। shall गलत नहीं है, shall का यूज करना गलत नहीं है, बट गिव प्रेफरेंस टू will ऑलवेज। हमेशा will ही यूज करिए, ठीक है? चलिए, सो present tense is MR, past tense was, were, will be, shall be, future tense। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स प्रैक्टिस। मैं एक सेंटेंस बोलूंगी, आपको जल्दी जल्दी बोलना है, ठीक है? मैं क्लास में हूँ, फटाफट अब आपको बोलना है, कुछ नहीं करना, यू जस्ट ट्रांसलेट। मैं क्लास में हूँ, फटाफट। I am in the class. मैं रूम में हूँ, I am in the room. ओके। मैं कॉलेज में हूँ, I am in the college. ओके। साक्षी क्लास में है, Sakshi in the class. साक्षी इज इन द क्लास, ओके। कल साक्षी क्लास में थी, The class. साक्षी was in the class, साक्षी was in the class। कैसे बोलेंगे कि मैं एक गुड स्पीकर बनूंगी? I will be a good speaker. वेरी गुड। जैसे श्रुति बोल रही है ना, जैसे श्रुति बोल रही है वैसे सभी को बोलना है। अभी आपको क्या करना है, सभी को सुनकर बोलना है। अब प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है, स्पोकन की जो प्रैक्टिस होती है ना, सिंपल सिंपल, मतलब हम ग्रामर सीखकर स्पोकन सीखेंगे। ग्रामर हमने सीख लिया, अब उसी ग्रामर को हम स्पोकन से ऐड करेंगे, क्योंकि फाइनली हमें स्पोकन ही सीखना है ना? ठीक है, फिर से कैसे बोलेंगे? मैं एक गुड स्पीकर हूँ, I am a good speaker. I'm a good speaker, very good। मैं एक गुड स्पीकर थी, I was the good speaker. I was a good speaker। मैं गुड स्पीकर बनूंगी, come on everyone। I will be a good speaker. I will be a good speaker, very nice। कैसे बोलेंगे? राहुल, राहुल इंटेलिजेंट है, राहुल इज Rahul is intelligent. इंटेलिजेंट, वेरी नाइस। अच्छा, राहुल बहुत आलसी था, Rahul was lazy. वेरी नाइस। राहुल वॉज लेजी, राहुल वॉज लेजी, है ना? मैं ज्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रही हूँ, आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना? बाकी लोग बोल नहीं रहे तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना, मैं क्या टॉपिक ले रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ। गाइज, आर यू Yes, गेटिंग? ma'am. है ना? आप लोग सुनकर ना आपको ट्रांसलेट करना। एक्चुअली अभी हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसलेशन कर रहे हैं। Ma'am, हाँ जी, ma'am, I प्लीज have a doubt. प्लीज पूछिए। Ma'am, what will we use? A or the? कैसे कैसे? ए या द? कहाँ पर? Yes, ma'am. कहाँ, कैसे, कहाँ? फिर से। Ma'am, example में. ए और द कहाँ यूज करेंगे? Yes, ma'am. जैसे अपन ने बोला कि I am in the class. So A use करना है कि the use करना है? देखिए, यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, है ना? 1 मिनट बाद क्लास खत्म हो जाएगी तो फिर रिज्वाइन करिएगा, है ना? हो सकता है हमारी बात कट जाए, 1 मिनट बचा है, फिर रिज्वाइन कीजिएगा। जैसे मैंने बोला आई एम इन द क्लास, ठीक है? ये आपको मैं बताऊंगी जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगी ना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। बट जस्ट आप